सो हेलो फ्रेंड्स, इन लास्ट वीडियो हमने देखा था कि कैसे मल्टीपल शीट में सेम कंटेंट ला सकते हैं हम। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अभी वर्किंग इन एक्सेल यूजिंग ओनली कीबोर्ड, दैट इज कीबोर्ड शॉर्टकट्स। सो लेट्स स्टार्ट। So first is to navigate in menu bar, that is to use the various functions given in the menu bar. We have to just press Alt, this is Alt, so we get into that, and then we have to just press tab or arrow key. For example, I am pressing here tab, so we can move ahead. We can also use arrow key. Now I am using arrow key, right arrow, left arrow. We can also use shift tab to go back. I am now using shift tab, so I am going backward instead of forward, and I am just press tab, then I will move forward. Same way to come back in the editing mode, means if I have to come again on working sheet, then I have to just press escape. Now if I press down arrow, I will be in sheet and not in the above menu bar. Again I press Alt, I will go there. And here also the name of the first letter of or one letter of the various home, insert, page layout, formula functions have been given, that you can check and remember whatever generally used function. We can remember the same and easily work out our exercise. For example, I just go after using this border function, I use by that. For example, Alt HB. So if I open new worksheet, Control N, new worksheet, that if I open some data, for example, let's say some random number we take, equal to random between 1 lakh to, so this is number, copy paste कर देता हूँ. मैंने दोनों में सेम अमाउंट लिख दिए. So I have just taken random numbers. Now if I want to use this border function, then how can I use? Then I have simply select whatever area I want to have border. For example, I want to have border from this to this, then I press Alt. I have done for home, this is home, so H. Then for border we have B for border, B, and I want to have all borders, so I will press A. तो ये पूरे में बॉर्डर आ गई है. ये मैं डायरेक्टली भी यहाँ कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल Alt HBA, तो ये आ गई. Next is highlight cell. How we can use this function. So for example, I want to highlight this number cell, then Alt HH, whatever color I want, this. Again for Alt H for home, and here highlight H, then up arrow or down arrow, whatever you can, just up arrow, down arrow, right arrow, whatever color you want to select, you select and just give enter. So this is highlight function. Alt HH. Now for filter, data filter, Alt 8T,
For example, I want to make filter of this, so then I select this, alter a t, तो फिल्टर हो गया है। और फिल्टर को देखने के लिए शॉर्टकट है अल्टर डाउन एरो, अल्टर डाउन एरो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्टर प्लस अल्टर डाउन एरो करके। आई विल टेक अ डिटेल टॉपिक ऑन दिस, बट जस्ट कलर फिल्टर कर सकते हैं, नंबर फिल्टर कर सकते हैं। Then next I am quickly going through so that all are covered in short time. Then selecting row or column, selecting row I can show over here only, shift space, तो shift के स्पेस करेंगे तो ये रो सिलेक्ट हो जाएगी। कॉलम सिलेक्ट करनी है तो शिफ्ट कंट्रोल के साथ स्पेस, तो पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी। अभी ऐड करनी है कोई आइदर रो और कॉलम, तो मैं वापस उस सीट में चला जाता हूँ। यहाँ मेरे को कोई रो ऐड करनी है बीच में, तो मैं करूँगा शिफ्ट स्पेस, और दूसरा शॉर्टकट भी मैंने लिखा है कंट्रोल प्लस, दैट इज़ कंट्रोल प्लस, तो यहाँ रो ऐड हो जाएगी। और कॉलम करनी है तो कंट्रोल स्पेस और कंट्रोल प्लस, तो कॉलम ऐड हो जाएगी। और रिमूव करनी है तो फिर से सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट स्पेस और डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस। अगेन फॉर कॉलम ऑल्सो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल स्पेस एंड डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस। तो हमने देख लिया है कैसे सिलेक्ट करना है, कॉलम हो एरो हो। ऐड कैसे करना है कंट्रोल प्लस, डिलीट कैसे करना है दैट इज़ कंट्रोल माइनस, एंड कट और मूव कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को ये फिगर कट करके ऊपर यहाँ लेनी है, मैं अभी यहाँ सीरियल नंबर लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे। एक और दो नीचे एक ऊपर है, शिफ्ट स्पेस करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एक्स दूंगा, जिसके ऊपर वो करना है वहाँ पे जाऊँगा, शिफ्ट स्पेस अगेन दूंगा और कंट्रोल प्लस, तो ये दो वाला ऊपर आएगा, एक वाला नीचे आएगा। ये रैंडम नंबर है इसलिए चेंज होते रहेंगे। देन हाइड कॉलम ऑब्लिक रो, तो कॉलम रो हाइड करने के लिए फॉर एग्जांपल ये कॉलम मेरे को हाइड करनी है, तो कॉलम सिलेक्ट करने के लिए पहले तो कंट्रोल स्पेस, और हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज ब्रैकेट, दिस इज द सिंबल ऑफ क्लोज ब्रैकेट, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, दिस कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट, तो ये हो गया अंदर। फिर इसको वापस देखना हो तो जहाँ पर भी हाइड है वो दोनों कॉलम को हमको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल स्पेस शिफ्ट राइट एरो, तो दोनों कॉलम सिलेक्ट हो गई। देन राइट क्लिक करना है कीबोर्ड से, कीबोर्ड में राइट क्लिक आता है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। ये रहा राइट क्लिक, यहाँ फॉर एग्जांपल मेरा एक कॉलम है, यहाँ मैं कीबोर्ड से ये प्रेस करूँगा तो ये राइट क्लिक आ जाएगी, और यहाँ से अनहाइड करूँगा तो ये अनहाइड हो जाएगी, अनहाइड हो गई। सो हाइड कॉलम ऑब्लिक रो भी कर सकते हैं, कंट्रोल जेड, ये रो हाइड हो गई। अगेन सिलेक्ट जहाँ पे भी हाइड हुई है और राइट क्लिक कीजिए और अनहाइड, तो ये अनहाइड हो गई। ये मैंने शॉर्टकट लिखना रह गया है, एक्चुअली रो के लिए है क्लोज ब्रैकेट, क्लोज। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, कॉलम के लिए क्लोज ब्रैकेट, ये हो गया। अगेन सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, यू फॉर अनहाइड, अनहाइड हो गया। और रो के लिए सिलेक्ट किया, ओपन ब्रैकेट किया, वापस सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके यू फॉर अनहाइड, तो ये हो गया। नेक्स्ट ऑटो फिट टू कॉलम,
कोई कंटेंट मैंने लिखा है, फॉर एग्जांपल कोई रैंडम टेक्स्ट ले लेता हूँ कोई भी। तो अभी ये कंटेंट दूसरे कॉलम में भी जा रहा है, एच आई कॉलम में, तो उसको वो पूरी कॉलम में लाने के लिए है शॉर्टकट अल्टर HOI। तो ये पूरे कॉलम में आ गए। वापस कर देता हूँ कंट्रोल जेड अल्टर, तो ऊपर आ गए हम। मेजॉरिटी फंक्शंस होम में मिल जाएंगे आपको, तो आपको अल्टर एच तो याद रख के लेना है, और सबका कोई ना कोई लॉजिक है। जैसे हाईलाइट का एच था, फॉर्मेट पेंटर का FP है, वैसे फॉर्मेट रो और उसके लिए भी O है, फॉर्मेट का O। तो अल्टर HO, फिर रो हाइट के लिए कॉलम विड्थ के लिए I। तो ये कॉलम आपका पूरे आ गया। नेक्स्ट होम एंड एंड। तो फॉर एग्जांपल हमको यहाँ से कहीं पे भी आप हो और आपको होम पे जाना है, तो आपको जस्ट कंट्रोल होम प्रेस करना है। तो आप फर्स्ट सेल में चले जाएंगे, कंट्रोल होम, और लास्ट में कहीं पे जाना है तो कंट्रोल एंड करेंगे। अभी कंट्रोल एंड की खासियत ये है कि आपके कहीं पे भी आपने कुछ लिखा हो कंटेंट, कहीं पे यहाँ नीचे लिखा हो, मैं कंट्रोल होम कर देता हूँ वापस और कंट्रोल एंड करूँगा, तो लास्ट जो लिखा हुआ है वहाँ पर अपने पहुँच जाएंगे। देन सिलेक्ट कंटेंट पार्शियली, ये ऑलरेडी मैंने वर्किंग के दौरान किया है। जैसे आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, तो मेरे को कंटेंट सिलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो में करूँगा। शिफ्ट जनरली कंटेंट सिलेक्ट करने के लिए होता है, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो में करूँगा, तो जितना भी कंटेंट मेरे को सिलेक्ट करना है मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। देन सिलेक्ट ऑल डिटेल, फॉर एग्जांपल ये तो हुई एक दो जितनी नीड बेस सिलेक्शन। अभी मेरे को पूरा कॉलम ही सिलेक्ट करना है जब तक लास्ट कंटेंट लिखा है, तो मैं करूँगा कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूँगा तो भी हो जाएगा। और अगर कंटेंट में स्पेस है बीच में, फॉर एग्जांपल यहाँ स्पेस है, तो क्या होगा, मैं यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करूँगा तो यहाँ तक ही आएगा। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पूरा सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड करना पड़ेगा, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे भी कंटेंट होगा। अभी मेरा यहाँ कंटेंट कोई काम का नहीं है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अभी शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो करूँगा तो जो स्पेस है वहाँ तक ही जाएगा, बीच में स्पेस होगा तो वहाँ तक ही जाएगा। पर कंट्रोल शिफ्ट एंड करोगे, कंट्रोल शिफ्ट एंड, तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। कितना भी कंटेंट हो, मतलब कोई भी कॉलम में कंटेंट हो तो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। देन फॉर्मेट सेल, ये भी आपका मैं वही फंक्शन लिया है जो डे टू डे रूटीन में जनरली यूज़ होते हो। वैसे तो बोल्ड करना, कंट्रोल B कंट्रोल I ऐसे सब फंक्शन नहीं लिए, और सम डिफ़िकल्ट फंक्शन है वो भी नहीं लिए, जो मैं नॉर्मल यूज़ होते हैं वही फंक्शन लिए है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या था, फॉर्मेट सेल। ओके, फॉर्मेट सेल के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल 1, कंट्रोल 1। फॉर एग्जांपल मेरे को ये सब फॉर्मेट, पहले मैं डिलीट कर देता हूँ, मेरे को ये सबको फॉर्मेट करना है, तो मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ डाउन एरो, देन कंट्रोल 1 करूँगा, कंट्रोल 1। तो ये डायलॉग बॉक्स आ गया। वापस जा रहा हूँ पहले, नंबर, इसमें टैब का यूज़ होगा, टैब शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट टैब का यूज़ होगा, तो आप आगे पीछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरे को टैब करूँगा, फिर एंड करूँगा, एंड करूँगा तो मैं लास्ट में जो यहाँ कस्टम है वहाँ पे आ जाऊँगा एंड। तो एंड का यूज़ जनरली होता है लास्ट उसमें आने के लिए। डाउन एरो करूँगा तो एक एक करके आऊँगा, मैं एंड कर दूँगा क्योंकि मेरे को कस्टम करना है। फिर टैब करूँगा तो मैं आगे आ जाऊँगा, फिर मेरे को जो फॉर्मेट करना है यहाँ से हो सकता है, फिर अगेन मैं वो यूज़ करूँगा शॉर्टकट अल्टर HOI, तो ये कॉलम पूरे में हो जाएगी। ये मैं अलग फॉर्मेट कर देता हूँ।
ओके, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया। और कोई भी मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है, डेट की हो, कोई भी हो, कंट्रोल टैप करके आगे के मेनू में जा सकते हो और कंट्रोल शिफ्ट टैप करके आप पीछे आ सकते हो। थोड़ी दिक्कत होगी, या राइट और लेफ्ट एरो करके आ सकते हो आप। और टैब का यूज़ आगे के फंक्शन में जाने के लिए होता है, ठीक है। और कोई भी वो मैं डिटेल में लूँगा आपके लिए फंक्शन। दूसरे कंट्रोल पेज डाउन करके भी होता है, बहुत सारे कीज है जिससे वो शॉर्टकट यूज सकते हैं। जनरली मेजरली टैब और कंट्रोल पेज डाउन, और ये आप यूज़ करोगे तो आप इजीली आप एक्सेल में वर्क कर पाओगे। देन राइटिंग इन सेल, ये सिंपल एक फंक्शन है। फॉर एग्जांपल मेरे को कोई कंटेंट लिखा हुआ है, व्हाट आई कैन से बुक्स, आगे मेरे को इसी में और कोई कंटेंट लेना है। आइदर मैं एंटर दूंगा तो बाहर निकल जाऊंगा और आगे लिखने की कोशिश करूंगा तो आगे लिखता ही जाऊंगा। पर मेरे को इसमें नीचे लिखना है तो मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर दे दूंगा, सॉरी अल्टर एंटर दे दूंगा, अल्टर एंटर। तो मैं इसमें नीचे लिख सकता हूँ इसी सेल में, अल्टर एंटर, अल्टर एंटर। तो इसी सेल में मैंने लिख दिया। तो अल्टर एंटर करके आप ये कर सकते हैं। मर्ज सेल, ये आपको बहुत बार यूज़ करने का आएगा जब आप काम करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कोई फिगर ले लेता हूँ, ऐसा कोई टेबल है ये, और आपको दोनों कंबाइन यूज़ करना है तो आपको ये दोनों सिलेक्ट करके अल्टर एच, ये ऑलरेडी ऊपर है, ये पर मेजरली यूज़ होता है इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिए, अल्टर एच मर्ज एंड सेंटर, ये रहा मर्ज एंड सेंटर। तो अल्टर एच एम सी, फिल्टर निकाल देता हूँ, अल्टर ए टी, फिल्टर निकाल दिया। तो अल्टर एच एम सी हो गया। तो ये आपका ये मैंने तो मर्ज एंड सेंटर हो गया। अदर दूसरे भी फंक्शन होते हैं पर वो मैं अलग वीडियो लूँगा तब डिटेल में लूँगा। अभी जस्ट खाली आपके डे टू डे में यूज़ हो सकते हैं वो फंक्शन ले रहा हूँ। वेब टेक्स्ट भी सेम टाइप का एक फंक्शन है कि कोई भी अपने कंटेंट लंबा हो रहा है तो इसको रैप करने के लिए अल्टर एच डब्ल्यू, तो जितनी कॉलम की विड्थ है उसमें वो कंटेंट आ जाएगा। अल्टर एच डब्ल्यू रैप का मीनिंग है जितना कॉलम की विड्थ है उतने में वो कंटेंट आ जाएगा, ताकि आप फॉर एग्जांपल अल्टर एच ऐसे कर देता हूँ, मैं वापस बताता हूँ आपको। अल्टर एच डब्ल्यू करूँगा तो वापस आ जाएगा। फिर से मैं करता हूँ अल्टर एच डब्ल्यू करूँगा तो ये वापस कंटेंट आ जाएगा। पे स्पेशल करने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ मेरी ये सब वैल्यू, फॉर एग्जांपल पे स्पेशल जनरली कोई फार्मूला हो या कोई कंटेंट हो उसको एज ए वैल्यू या दूसरे फॉर्मेट में करने के लिए होता है। आई एम जस्ट शोइंग शॉर्टकट, ये वैल्यू मेरे को पेस्ट करनी है तो मैं कंट्रोल कॉपी करूँगा, जहाँ पे पेस्ट करनी है वहाँ पे आऊँगा। अल्टर एच फॉर होम, मेजॉरिटी फंक्शंस आर इन होम ओनली। अल्टर एच वी जनरली अपने वो कंट्रोल वी जो यूज़ करते हैं, कंट्रोल कॉपी कंट्रोल वी, वो वी ऐसे याद रख सकते हैं। अल्टर एच वी एंड वी फॉर वैल्यू, और आपको वी करोगे तो पेस्ट हो जाएगा, पर आपको कोई स्पेसिफिक करना है तो वेरियस अंदर फंक्शन दिए हुए। अल्टर एच वी एस करोगे तो आप वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अलग अलग तरह से आप पे स्पेशल कर सकते हैं। मैं वैल्यू करता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ आ गई। इसमें जो कॉलम सिलेक्टेड है उसका जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि मैंने फॉर्मेट सिलेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट वैल्यू लिए। नेक्स्ट फिल बिलो फिल राइट, फॉर एग्जांपल आई वांट टू फिल दिस फिगर
this figure in below cell, then I will press Ctrl D, Ctrl down, तो वही फिगर आ जाएगी। और ज़्यादा में करनी है तो शिफ्ट करके सेल सिलेक्ट करूँगा और फिर से करूँगा Ctrl D, तो ये पूरी सब ऊपर का फंक्शन जहाँ से सिलेक्ट किया वो सब नीचे आ जाएगा। सेम अगर राइट में करनी है तो Ctrl R, Ctrl R, Ctrl R, तो राइट में आ जाएगी कोई भी Ctrl R। ये फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला है, ओके फॉर्मूला है तो फॉर्मूला कॉपी हो जाएगा। Ctrl R करूँगा तो ये फार्मूला है, फार्मूला का हम अलग वीडियो रखेंगे फिर तब डिस्कस करेंगे। ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। फाइंड एंड रिप्लेस मेजोरिटी आपको पता होगा, Ctrl H करेंगे तो फाइंड रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ भी मेरे को फाइंड करना है, फाइंड 5 करना है, रिप्लेस करना है 15 से, और रिप्लेस करना है, सॉरी यहाँ फॉर्मूला है, अगेन मैं बाहर लिखता हूँ Ctrl H, फाइंड रिप्लेस। वहाँ पे फॉर्मूला था इसलिए प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे 15, 5 की जगह पहले 5 था, 15 हो गया जस्ट, सॉरी। देन go to specified cell, go to specified cell range, let's see this, for example मुझे कोई स्पेसिफिक सेल पे जाना है तो मैं Ctrl G यूज़ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे को जाना है I-20 पे तो मैं Ctrl G करूँगा, I-20 करूँगा तो मैं I-20 पे पहुँच जाऊँगा। और मेरे को वहाँ तक का पूरा एरिया सिलेक्ट करना है तो मेरे को शिफ्ट यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ और मेरे को यहाँ से 2 से लेके फॉर एग्जांपल 20 अगेन लेते हैं, 20 या 21 लेते हैं, 21 तक का एरिया पूरा सिलेक्ट करना है। यहाँ से लेके यहाँ कर देते तो क्या डेटा हो जाएगा सिलेक्ट, तो मैं करूँगा Ctrl G, क्या करना है मेरे को D21, तो अभी मैं एंटर करूँगा तो मैं वो सेल पे पहुँचूँगा, पर शिफ्ट के साथ एंटर दूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा वहाँ तक का पूरा। अगेन यहाँ पे हूँ, Ctrl G, जो भी सेल मेरे को चाहिए फॉर एग्जांपल M21, मैं सिर्फ एंटर करूँगा तो मैं M21 में जाऊँगा, पर Ctrl G मैं शिफ्ट के साथ एंटर करूँगा M21 शिफ्ट के साथ, तो मैं पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट न्यू वर्कशीट, वो तो मैं आपको बता ही दिया Ctrl N, वो मैंने ये न्यू वर्कशीट ऐसे Ctrl N करके किए, और ये भी आपके सामने कर रहा हूँ नेविगेट वर्कशीट अल्टर टैब। मैंने अल्टर टैब किया तो जो भी सीट है वो आपको दिखेगी और आप रोटेट कर सकते हो। सो थैंक यू फ्रेंड्स, much more to learn, but for today this much only. Thank you very much. Please share your views in the comment, and like, share and subscribe if you like the video. Thank you. And also if you need any clarification, just write down in comment. Thank you very much.